Welcome to the fourth part of surface area volume exercise 13.3. Now this exercise is based on cone. So a quick recap. A cone is a structure which has two surfaces. The first surface is the curved surface. This is the curved surface. So when you find the area of this, it's called curved surface area, whose formula is 2 9. Formula is pi r l. And this flat is the base. Base is a circle. Circle's formula is pi r square. When you add both, total surface area pi r bracket l plus r comes into picture. तो कर्व सरफेस एरिया, बेस एरिया और उन दोनों का टोटल सरफेस एरिया. Also, it is important to know that there is a Pythagorean relationship between L, H and R. Radius of the cone, height of the cone or slant height of the cone. Height of the cone is this red line, H for height, जो वॉल्यूम के फॉर्मूला में आता है. वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. The blue line is the radius of the circle or radius of the base r, and the green line is called slant height L, जो कर्व्ड सरफेस एरिया के फॉर्मूला में और टोटल सरफेस एरिया के फॉर्मूला में आता है. एंड एच आर और एल का रिलेशनशिप इज पाइथागोरियन रिलेशनशिप. तो ये 90 डिग्री होता है. हाइट एंड रेडियस आर 90 डिग्री टू ईच अदर. सो हाइपो स्क्वायर इज साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर. एल स्क्वायर इज एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज अ फॉर्मूला. तो कितने फॉर्मूलाज हो गए? सी एस ए का फॉर्मूला, बेस के एरिया का फॉर्मूला, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला, वॉल्यूम का फॉर्मूला एंड पाइथागोरियन रिलेशनशिप. Keep this formula in front of you while solving every single sum of this exercise. Number 1. Diameter of the base of the cone is 10.5 centimeter. अब diameter 10.5 है तो रेडियस कितना? 10.5 का आधा, मतलब 105 अपॉन 20. 5 से कट करो तो 21 अपॉन 4 सेंटीमीटर. सॉल्व करके रेडी कर दिया. स्लैंट हाइट 10 सेंटीमीटर, L 10 सेंटीमीटर. क्वेश्चन इज फाइंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन. पाई आर एल. पाई आर एल. Cancel whatever is possible and the remaining is the answer. 7 3s are 2 11s are और 2 5s are 4 कट हो गया. 165 centimeter square is the final answer. Second question. Find the total surface area of the cone if slant height is 21 meter. डायमीटर ऑफ बेस 24 मीटर, और डायमीटर अगर 24 है तो रेडियस 12 मीटर. टोटल सरफेस एरिया TSA पाई आर ब्रैकेट L प्लस आर. 22/7 12 21 प्लस 12 pi r and L plus r. 21 plus 12 33.
1244.57. How did I come up with this answer? Basically, you have to multiply 22, 33 and 12 first. And it is a lot of hard work. 22 into 12, 220 plus 44, 264. And 264 into 33, 8712, and 8712 has to then divided by 7. So 7 ones are 7, carry 1 17, 7 twos are 14, carry 3 31, 7 fours are 28 32, 7 fours are 28 40, 7 fives are 35 50, 7 sevens are 49. ये करना ही पड़ेगा. Why do I use calculator? Because I want to save time. But when you are solving the sums, you have to calculate like this and find the total surface area answer as 1244.57 cm square. Third sum, curved surface area of cone is 308 centimeter square. एक कोन का curved surface area CSA is 308 centimeter square. Slant height is 14. L is 14. Find the radius of the base and find the total surface area of the cone. Very easy. CSA 308 मतलब pi r L 308. 22 by 7 r L 14 दिया हुआ है is 308. 7 and 14 cut, 2 बचा 308. R is equal to 308 divided by 22 and 2 44. 11 4 जा 11 से कट करो तो 11 28 जा and 11 4 जा. R is equal to 7. First answer ready. And second answer is find total surface area. Apply the formula of TSA. Pi r L plus r, pi r L plus r. 7 7 cut, 22 into 21 is 440. 462 centimeter square is the total surface area of the cone. Sum over. Fourth sum, a conical tent is 10 meter high and radius of the base is 24. When they say 10 meter high, they are talking about the vertical height. This is 10 meter high. H is equal to 10 meter. Radius of the base is 24 meter. ये 24, ये 10. Find slant height. L is equal to question mark. तो चैप्टर शुरू हुआ, अभी आज का लेक्चर शुरू हुआ, उसमें मैंने बताया था the relationship between H, R and L is that of a right angle triangle where the standing line is the height, sleeping line is the radius, and this is slant height. So L square is equal to H square plus R square. 10 square plus 24 square. 100 plus 24 square is 576. So 676. L square is 676. L is root 676. ये बाय हार्ट कर लो. 26 का स्क्वायर 676 होता है. देखो चेक करते हैं कैलकुलेटर से. 26 इंटू 26 is 676. तो L मिल गया 26 मीटर.
Second question, find the cost of canvas required to make the tent if 1 meter is 70 rupees. अब इतना याद रखना, जब टेंट बनाते हैं तो टेंट में कैनवास कहाँ यूज होता है? सिर्फ साइड में. द कैनवास इज यूज्ड ओनली फॉर मेकिंग द साइड्स ऑफ द टेंट. बेस खाली होता है. देयरफॉर वी विल फाइंड कर्व्ड सरफेस एरिया फर्स्ट. पाई आर एल 22/7, radius 24, L 26. 22 into 24, 480 plus 48, 528, and 528 into 26, 13728 upon 7 मीटर स्क्वायर. इतना कैनवास चाहिए. वाई एम आई नॉट डिवाइडिंग विथ 7? क्योंकि पूछा ही नहीं है. दे आर नॉट आस्किंग मी हाउ मच एरिया, दे आर आस्किंग मी फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज 70 रुपीज. तो मैंने स्मार्ट वर्क किया. 1 मीटर स्क्वायर का 70 रुपीज कॉस्ट है, तो 13728 अपॉन 7 मीटर स्क्वायर का कितना? मैंने 7 से डिवाइड किया ही नहीं, बिकॉज फाइनल आंसर इसका पूछा ही नहीं था. दिस इंटू दिस अपॉन 1 का तो कोई इंपॉर्टेंस नहीं है. सो दिस इंटू 70 में 7 कट, 137,280 rupees is the answer. You see how easily 7 got cancelled. That's why मैंने ये 7 का डेसिमल वर्जन निकाला ही नहीं था. दिस इज कॉल्ड स्मार्ट वर्क. अगर पूछा नहीं है तो उसका डेसिमल वर्जन मत निकालो, उसको ऐसे का ऐसे यूज करो, ताकि आगे जाके फ्यूचर में 7 कट होने के चांसेस हो. तुम्हारा आंसर इजीली आ जाएगा. So 1,37,280 rupees is the cost of the canvas. That's the answer. This is a very, very important sum. Try to understand the concept. जब मैं एक शर्ट बनाता हूं तो शर्ट में कितना कपड़ा गया उसका एरिया comes from where? It comes from the store. और स्टोर कपड़ा कैसे बेचता है? उसका एक बंडल होता है जिसमें से वो तुम कहो उतनी लेंथ काट के दे देगा. तो पूछता है बोलो कितना काटूं? 2 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर. और उसकी विड्थ फिक्स होती है 1 मीटर, 1.2 मीटर, डिपेंड्स ऑन द शॉप. तो उसका जो रोल है वो फिक्स्ड विड्थ का है. उसमें से जितनी लंबाई बोलोगे उतनी काट के मिल जाएगी, सो दैट यू कैन मेक योर शर्ट. प्लस देयर विल बी सम अमाउंट ऑफ वेस्टेज. द सेम कॉन्सेप्ट इज अप्लाइड हियर. सी केयरफुली. व्हाट लेंथ ऑफ टारपोलिन 3 मीटर वाइड? 3 मीटर की पौड़ाई वाला टारपोलिन मतलब प्लास्टिक का टुकड़ा जो रोल में से बाहर निकाल रहे हम. व्हाट लेंथ मतलब L क्वेश्चन मार्क. 3 मीटर वाइड की कितनी लंबाई चाहिए? फॉर व्हाट? टू मेक कोनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 and base radius 6. तो एक तंबू बनाना है जिसका हाइट 8 है और बेस रेडियस 6 है, तो कितना लेंथ चाहिए? Assume that extra length of material required for stitching margin and waist cutting is 20 centimeter. तो वो बाद में देखते हैं. पहले ये कॉन्सेप्ट समझो. टेंट बनाने के लिए कपड़ा चाहिए. कपड़ा आता है मार्केट से, और मार्केट में स्पिंडल्स होते हैं
दुकान वाला पूछ रहा है कितना लेंथ दूं। योर जॉब इज टू थिंक कि टेंट और ये दुकान के कपड़े के बीच में क्या सेम होना चाहिए। एरिया, तो ही टेंट बनेगा। एरिया ऑफ टेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, दैट्स द कॉन्सेप्ट हियर। अगर रेक्टेंगल का एरिया बहुत ज्यादा है तो टेंट बनने के बाद वेस्टेज ज्यादा हो जाएगा। तो तुम एरिया उठा के लाए 700, टेंट बनाने के लिए चाहिए 200, तो 500 वेस्ट हो गया ना, एक्स्ट्रा कपड़ा। और अगर एरिया ऑफ रेक्टेंगल है 700 और टेंट बनाने के लिए चाहिए 2000, तो टेंट बनेगा ही नहीं क्योंकि तुम कम कपड़ा लेके आए हो। सो बेसिकली यू हैव टू ट्राई that area of rectangle and area of tent should be same, and area of tent मतलब curved surface area of cone and area of rectangle मतलब length into breadth। तो pi r l is equal to length into breadth। pi 22/7, r 6, l 10, length breadth। ये l 10 कहां से आ गया? 6, 8, 10 का पाइथागोरस करो, आई मीन 6 और 8 का पाइथा करो, जो तुम्हें लिख के बताना पड़ेगा, तो स्लैंट हाइट विल कम 10। दूसरी चीज, क्योंकि छोटा l 2 बार नहीं ले सकते मैथ्स में, आइडियली यू शुड राइट कैपिटल L, द लेंथ ऑफ द क्लॉथ। तो फिर से एक बार, तंबू का कपड़ा रेक्टेंगल में से आ रहा है, देयरफॉर तंबू का एरिया और रेक्टेंगल का एरिया सेम है। तंबू का एरिया पाई आर एल, वेयर एल इज कैलकुलेटेड सेपरेटली, और रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ, दैट्स ऑल। एल इज इक्वल टू, यू कैन वेरी इजीली फाइंड आउट, इट्स 22 into 6 into 10 upon 7 into 3। 440 upon 7 मीटर। फिलहाल ये मेरा फाइनल आंसर नहीं है, बिकॉज दुकान जाते जाते सेठ ने बोला था कि 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा कटवा के लाना। तो जो भी लेंथ लाए उसमें 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लाना, क्योंकि स्टिचिंग, कटिंग एंड वेस्टेज हैज टू बी टेकन केयर ऑफ। So the actual length is 440 upon 7। ये मीटर है क्या? मीटर मीटर मीटर, 3 मीटर, 8 मीटर, 6 मीटर, तो ये मीटर है। 440 upon 7 मीटर प्लस 20 सेंटीमीटर, बट आई से 20 upon 100 मीटर। तो ये हो गया एडिशन। LCM 700, 44,000 प्लस 7 into 20, 140 is equal to 44140 upon 700। cancel with 7, 7 6 are 42, 7 3 are 21, 05.7 और 2 0 है, सो 63.057 मीटर क्लॉथ इज रिक्वायर्ड फाइनली टू मेक द टेंट। जो तुम राउंड ऑफ कर सकते हो, तो फाइनल आंसर 63 मीटर लिखा है टेक्स्ट बुक के पीछे, विच इज सेम। यू विल गेट फुल मार्क्स फॉर दिस आंसर ऑल्सो। बट क्या होता अगर स्टार्टिंग की लेंथ को मैं डेसिमल में कन्वर्ट करता, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। देखो 440 अपॉन 7 मीटर, 7 6 जा 42, 20, 7 2 जा 14, 6 60, 7 8 जा 56, 40, तो 62.85 मीटर होता।
और इसमें 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लाने को बोला था. सो 62.85 प्लस 20 सेंटीमीटर इज 0.2 मीटर. स्टिल द आंसर इज 63.05 मीटर ओनली, विच इज इक्वल टू 63. तो कैलकुलेशन तुम अपनी स्टाइल से कर सकते हो. मैंने एलसीएम लेके किया था एक बार और एक बार डेसिमल कन्वर्ट करके. बट बेसिक कॉन्सेप्ट डोंट फॉरगेट कि तंबू बनाने के लिए कपड़ा जब मार्केट से आता है तो एरिया ऑफ टेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेथ. तो अपने आप एल की वैल्यू आ जाएगी. Slant height and base diameter of conical tomb are 25, 14. Diameter 14, radius 7, slant height 25. Find the cost of whitewashing its curved surface at the rate of. कर्व्ड सरफेस को कलर करना है तो पहले कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करो. पाई आर एल 7 कट 22 इंटू 25 550. सो 550 मीटर स्क्वायर इज द कर्व्ड सरफेस एरिया. और उसको पेंट करने का खर्चा कितना? 210 rupees per 100 meter square. 210 rupees is the cost for painting 100 meter square. How much is the cost of painting 550 meter square? Cross multiply. 210 into 550 upon 100. 0 cut. 55 into 21. 1155 rupees is the cost of whitewashing the tomb whose dimensions are given above. Sum over. A joker's cap is in the form of a right circular cone of base radius 7 and height 24. जोकर्स कैप मतलब वो बर्थडे पार्टी में टोपी होती है ना, जो नीचे से खाली होती है और एक इलास्टिक होता है यहाँ पे ताकि तुम उसको पहन सको. तो जोकर्स कैप बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर, आर 7 सेंटीमीटर, हाइट 24 सेंटीमीटर. क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 कैप्स. कितना पेपर रिक्वायर्ड है? तो पेपर यूज कहां हो रहा है? पेपर सिर्फ यहां यूज होता है, नीचे नहीं. नीचे खाली है वरना तुम्हारा सिर जाएगा नहीं. तो पेपर इज यूज्ड ओनली इन द कर्व्ड सरफेस एरिया. और ऐसी 10 टोपी बनानी है तो यू विल राइट एरिया ऑफ शीट नीडेड इज इक्वल टू CSA इंटू 10 इज इक्वल टू पाई आर एल इंटू 10. एल तो है ही नहीं तो पहले एल फाइंड करो. एल फाइंड करने के लिए यू हैव टू अप्लाई पाइथागोरस, where this is the height, this is the radius, this is L. L square is equal to H square plus R square is equal to 576 plus 49 is equal to 625. और अगर L square 625 है तो L 25. और अब L मिल गया 25. तो 10 टोपी बनाने के लिए कितना मटेरियल चाहिए? पाई आर एल और ऐसे 10. 7 कट 22 इंटू 25 इंटू 10. 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ शीट इज रिक्वायर्ड टू मेक 10 such caps. A bus stop is barricaded from remaining part of the road
by using 50 hollow cones made up of recycled cardboard. 50 कार्डबोर्ड के कोन बनाए, बस स्टॉप के पास रखे. Each cone has base diameter of 40 centimeter. Base diameter 40 means radius 20 centimeter. And height 1 meter. Height 1 meter. If the outer side of each cone is to be painted and the cost of painting is so and so, what is the cost of painting all the cones? हमें कोन को पेंट करना है बाहर से, मतलब ये जो सरफेस है curved surface, that has to be painted. And when you are painting the curved surface, cost निकालने के लिए CSA फाइंड करना है. But problem is CSA के लिए I don't have L, curved surface area. ऐसे 50 कोन का खर्चा कितना? तो पहले CSA is equal to pi r L, but I don't have L and therefore I will do pytha. In a cone, हाइट और रेडियस में से L फाइंड करना आना चाहिए. L स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर. h 1 मीटर, रेडियस 0.2 मीटर. सी दिस इज इंपॉर्टेंट. सेंटीमीटर मीटर साथ में नहीं ले सकते, तो रेडियस को मीटर में कन्वर्ट करो और फिर आगे सम बढ़ाओ. 1 प्लस 0.04 which is 1.04. तो L is equal to root of 1.04. और ये दिया हुआ है, देखो तुम्हारे लिए खास, so that you don't have to worry. Root of 1.04 is 1.02. तो सीधा L is equal to 1.02 आ गया. पाइथागोरस. तो मीटर में रख के पाइथागोरस कंप्लीट करके L फाइंड करो. अब एक कोन पेंट करने का CSA फाइंड करते. CSA इज इक्वल टू पाई. इट्स गिवन इन द क्वेश्चन के पाई को 3.14 लेना है. ये देखो, यूज पाई इज इक्वल टू 3.14. सो कर्व्ड सरफेस एरिया इज पाई. R था 0.2 मीटर एंड L था 1.02 मीटर. मीन्स 314 इंटू 2 इंटू 102 अपॉन 1 2 3 4 5. सबके डेसिमल्स निकल गए. नाउ यू विल हैव टू मल्टीप्लाई 314 इंटू 2 628 इंटू 100 64056. 64056 अपॉन 5 zeros. बट ऐसे 50 कोन है, 50 cones. Therefore area to be painted is how much? तो 64056 upon 100,000 into 50. एक एक जीरो कट एंड 5 2 जा तो नीचे 2000 आ जाएगा. और 2000 का 1000 तो 64056 becomes 32028 upon 3 zeros, which is 32.028 मीटर स्क्वायर एरिया. 50 कोन का एरिया इतना है. कॉस्ट के लिए you have to read what is the rate of painting. 12 rupees per meter square. The cost of painting is 12 rupees per meter square. So 12 rupees
for 1 meter square, how many rupees for 32.028 meter square? All you need to do is multiply 32.028 into 12, 384.336 rupees. That's your final answer. So it's all about multiplication, जो तुम कर सकते हो. तो ध्यान से देखो, ऐसे 50 कोन थे और 50 कोन को बाहर से पेंट करने का खर्चा कितना, मतलब 50 कोन का CSA, बट CSA के लिए चाहिए L, और L पाइथागोरस से आ गया. CSA कैलकुलेशन से मिला, इंटू 50, तो 50 का CSA मिला, इंटू द रेट 384 point something rupees is the cost. We are going to continue to the next exercise 13.4, which is sphere and hemisphere. तो sphere और hemisphere को एक बार देख लेते हैं नज़दीक से. What is the TSA, CSA and volume types? List of formulas revise हो जाएंगे. Hemisphere और sphere. Hemisphere में this much portion is called CSA, which is 2 pi r square curved surface area, and total surface area is 3 pi r square. और sphere में curved surface area is 4 pi r square, and even the total surface area is 4 pi r square. Volume of hemisphere is 2 by 3 pi r cube, and volume of sphere is 4 by 3 pi r cube. 6 formulas we'll use and solve 13.4 exercise also. Find surface area of sphere of radius so and so. ये सम तुम्हें खुद सॉल्व करना है. सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, अब स्फीयर में एक ही सरफेस होती है, एंड सी कर्व्ड सरफेस बोलो या टोटल सरफेस, फॉर्मूला इज सेम. So all you have to do is apply 4 pi r square formula. 4 pi r square. Cancel and find the answer. Same way, take radius 5.6, take radius 14. You will be able to find out the surface area of sphere. Find surface area of sphere of diameter 14. तो diameter अगर 14 है तो radius 7 है. Therefore surface area of sphere is 4 pi r square. 4 pi r square. Calculate and find the answer. Similarly, diameter is 21. Radius you have to take as 21 by 2. So surface area is 4 pi r square. 4 pi r square. जितना हो सके उतना कैंसिल करो, बाकी मल्टीप्लाई करके आंसर फाइंड करो. Similarly, diameter is 3.5, radius is 3.5 by 2, मतलब 35 by 20, मतलब 7 by 4. Use this radius which is very clean. तो diameter to radius जब कन्वर्ट करते हो तो क्लीन रेडियस लेने का. 14 का आधा 7, 21 का आधा 10.5 होता है, बट आई चूज टू यूज 21 by 2 विच इज क्लीन. 3.5 का आधा 1.75 होता है, बट आई चूज टू टेक 7 by 4. तो ध्यान से देखो, डायामीटर 3.5, तो रेडियस कितना? 3.5 का आधा. जनरली पीपल टेंड टू डू 3.5 डिवाइड बाय 2
1.75, लेकिन मैं मना कर रहा हूं बिकॉज 3.5/2 is 35/20 is 7/4 is easy, and 1.75 is 175 upon 100. 5 3s are 15, 5 35, 5 20, 5 7s are 5 4s are, वही तो आ गया. तो why use difficult and big numbers? Use small and easy numbers. तो ये सब में बस उतना ही सीखना था कि डायमीटर टू रेडियस कैसे होता है. उसके बाद सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर. थर्ड क्वेश्चन, फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 10. टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला इज 3πr². 3 पाई की वैल्यू बोला गया है 3.14 एंड r² मतलब 10². 3 4s are 12, 3 1s are 3, 942 सेंटीमीटर स्क्वायर. आंसर वेरी सिंपल. ये कैलकुलेशन तुम्हें खुद करना है. 3.14 इंटू 3 इंटू 10 इंटू 10, 942. The radius of spherical balloon increases from 7 to 14 as air is being pumped into it. Find the ratio of surface area of balloons. Very easy. एक ज़माने में बलून छोटा था और उसका रेडियस 7 था. फिर उसमें किसी ने हवा भरी, हवा भरते ही बलून बड़ा हो गया, बड़ा होके रेडियस 14 हो गया. तो फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ बलून इन 2 केसेस. मतलब सरफेस एरिया 1 सरफेस एरिया 2 का रेशियो, मतलब डिवाइड करना. So you will write, you will not find SA1 SA2 separately. You will do it like this. Ratio is equal to surface area 1 upon surface area 2. 4 पाई r² बलून या स्फीयर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला, और सेकेंड में 4 पाई r². 4 कट पाई कट, 7 इंटू 7 अपॉन 14 इंटू 14, 7 14 7 14 कट. फाइनल आंसर द रेशियो इज 1:4 या 1/4. सो डोंट कैलकुलेट इंडिविजुअल सरफेस एरिया क्योंकि पूछा ही नहीं. फाइंड द रेशियो पूछा है, फाइंड द सरफेस एरिया नहीं. A hemispherical bowl is made up of brass, inner diameter. Find cost of tin plating on inside. Very simple. Brass की एक कटोरी है, हेमिस्फीरिकल, और तुमको उसे अंदर से कोटिंग करना है. यू हैव टू कोट इट फ्रॉम इनसाइड. मतलब यहां पे ये कोटिंग लगाना है, और कोटिंग लगाने का रेट भी दिया हुआ है. बट फर्स्ट वील हैव टू फाइंड आउट द कर्व्ड सरफेस एरिया, CSA. CSA of hemisphere is 2 pi r². Diameter 10.5. तो रेडियस कितना? 10.5/2, मतलब 105 अपॉन 20, मतलब 21/4. CSA is 2 pi r². 2 और 22 में से एक 4 कट, और 7 और 3 21. सो 33 इंटू 21 which is 660 plus 33, 693.
693 centimeter square is the curved surface area of the bowl which needs to be tin plated. और रेट है 16 रुपया फॉर 100 cm स्क्वायर. पैसा कितना? 16 rupees is the cost for tin plating 100 centimeter square. Then how much will be the cost of tin plating 693 centimeter square? So 693 into 16 upon 100. 110.88 rupees will be the cost to tin plate the bowl. But this answer does not match with the textbook. Why? Because there is a silly mistake. तो सम तुम लिख रहे होंगे तो तुम्हें अब तक पता चल गया होगा, बट अगर तुम बैठ के बस पिक्चर की तरह वीडियो देख रहे हो तो कुछ समझ में नहीं आएगा. अंदर से प्लेटिंग करने का मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया प्लेट करना है. फॉर्मूला 2πr². 2πr² में ये 4 डिवाइड करना रह गया. सो 33 इंटू 21 डिवाइडेड बाय 4 आएगा. तो अपॉन 4 मिस हो गया था. सो 33 इंटू 21 इज 693. 693 अपॉन 4. 4 1 जा 4. 7 3.25. So this is the correct area of the bowl. And then 16 rupees for 100 centimeter square. Then how much is the cost for 173.25 centimeter square? 173.25 into 16 upon 100. 27.72 is the correct answer according to textbook also and really also. So silly mistakes can happen anytime. Please don't forget a number in the flow of the sum. टेक्स्टबुक के सम्स इतनी बार करने चाहिए कि आंसर याद ही होना चाहिए कि 27 रुपीज के आसपास कुछ आएगा इफ इट्स अ बोल फॉर टिन प्लेटिंग. Find radius of a sphere whose surface area is 154. Surface area of sphere is 154. Surface area of sphere मतलब 4πr² is 154. तो 4πr² is 154. R square is 154 into 7 upon 22 and 4. Cancel. 11 2s are 11 14s are 2 7. तो R square is equal to 49 upon 4 आया. तो अगर R square 49/4 है तो R 7/2 और R 7/2 मतलब रेडियस इज 3.5 सेंटीमीटर. डायमीटर ऑफ मून इज 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ. डायमीटर ऑफ मून इज 1/4 डायमीटर ऑफ अर्थ. ठीक है, तो डायमीटर ऑफ अर्थ को डिवाइड करूं तो डायमीटर ऑफ मून अपॉन डायमीटर ऑफ अर्थ 1/4 आए. डायमीटर ऑफ मून मतलब 2 इंटू रेडियस ऑफ मून एंड डायमीटर ऑफ अर्थ मतलब 2 इंटू रेडियस ऑफ अर्थ इज ऑल्सो 1/4. 2 2 कट. रेडियस ऑफ मून अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ 1/4. इतना रेडी करके रख दो. डायमीटर के रेशियो से रेडियस का रेशियो फाइंड करो. और अब क्वेश्चन, फाइंड रेशियो
of their surface area. Surface area of moon upon surface area of earth. 4 pi r square upon 4 pi r square. 4 pi cut. rm square upon re square. rm upon re 1/4 है, तो उसका स्क्वायर 1/16 इज द फाइनल आंसर. तो कोई नंबर ही नहीं है, एक यूनिक सम है. द डायमीटर इज 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ. तो उससे रेडियस का रेशियो, और रेडियस का रेशियो मिलते ही सरफेस एरिया का रेशियो फाइंड कर सकते हैं. A hemispherical bowl is made up of steel 0.25 centimeter thick. ये आ गया नारियल. You have seen coconut. It has a thick edge, and that thickness in this case is 0.25 centimeter. ये जो thickness है, this is 0.25 centimeter thick from all sides. It's made up of steel. A hemispherical bowl is made up of steel 0.25 centimeter thick. The inner radius is 5 centimeter. Inner radius मतलब सेंटर से ये एज तक, it is 5 centimeter. Find outer CSA. वेरी इजी. आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब ये पोर्शन, और आउटर सीएसए के लिए आउटर रेडियस चाहिए. आउटर रेडियस इज इनर रेडियस प्लस थिकनेस. ये बाय हार्ट कर लो. इनर रेडियस 5 प्लस थिकनेस 0.25. आउटर रेडियस इज 5.25 सेंटीमीटर. And अब outer CSA is 2 pi r square. r तो मिल गया है, सिर्फ कैलकुलेशन है. 2 चेक करते रहने का. पाई 3.74 तो नहीं लेना है, नहीं. तो 2 पाई r 525 upon 100 स्क्वायर. सिर्फ ये 7 कबाब में हड्डी है, एक बार ये कट हो जाए फिर सिर्फ मल्टीप्लिकेशन है. और 7 7 ज़ा 49 ये कट होता है. 7 7 ज़ा 49 और ये फिर 25 3 ज़ा 25 4 ज़ा 2 and 22 ये 4. I think I will stop here. I'll not cut more. अब मैं सिर्फ मल्टीप्लाई करके डेसिमल लगा दूंगा. सो 525 इंटू 33 17325 अपॉन 100 173.25 outer curved surface area of the bowl. This is an important sum, थोड़ा सा यूनिक और इंटरेस्टिंग है. A right circular cylinder just encloses a sphere of radius r. Find blah blah blah. एक स्फीयर है, रेडियस r, तो डायमीटर कितना? 2r. और स्टैंडिंग डायमीटर कितना स्फीयर का? वो भी 2r. अब एक ऐसा सिलेंडर है विच परफेक्टली एनक्लोजेस द स्फीयर. सिलेंडर कुछ ऐसे बनाया है जो चारों तरफ से स्फीयर को परफेक्टली टच करता है.
जैसे ये फिगर है. फर्स्ट क्वेश्चन इज सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर. नंबर 1, और स्फीयर का एक ही सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया पाई आर स्क्वायर. दैट्स ऑल, क्योंकि आर तो आर है. सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज पाई आर स्क्वायर. सेकेंड क्वेश्चन इज कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. सिलेंडर का CSA का फॉर्मूला इज 2 पाई आर एच. 2 पाई आर एच. 2 पाई. अब सोचो, स्फीयर का रेडियस r है, तो सिलेंडर का रेडियस भी r ही होगा. Therefore r remains r. But the height of the cylinder is this portion. और ये रेड लाइन is the height of the cylinder. तो हाइट 2r लेनी पड़ेगी. 2 2s are 4 pi r square. And third question is ratio of 1 and 2. तो रेशियो ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर. 1:1. सम ओवर. That's the end of this chapter. You will get exact similar sums but with slight twist for homework. So your homework is to write all the textual sums with the video as well as do the PDF worksheets and submit before tomorrow night. Bye bye.